different things. Service नहीं, लेकिन सर्विस चार्ज अब नहीं लगेगा, सर्विस टैक्स सर लगेगा, सर्विस चार्ज लगाएंगे वो। सर्विस चार्ज भी लगेगा, ओवर एंड अबव जीएसटी। No, GST is different. GST is normal this thing, limited. Wonderful insights. So, continuing the session, may I please invite Mr. Deepak Jain to discuss about the impact of economy. Service charge तो सर total management के पास है। वो government का काम है। Thank you friends for having me here. Thanks to the President, Mr. Mittal and Mr. Mishra who invited me and given me this privilege to speak before all of you. सर्विस के साथ टैक्स, टैक्सिंग द कस्टमर। First speaker. So friends, it is as Mr. Mittal also said, it is an interim budget. The final budget will be presented in the month of maybe the month of July after the government again the Modi government came or whosoever government came, it will be a final budget. So friends, the government now switched from Amrit Kal to Kartavya Kal. Amrit Kal is the period during which we have to work, we have to perform towards a economy, developed economy at 2047. This is the Amrit Kal period, as Mr. Modi said. This is the gestation period. In this period, we have to work. All of us, we have to work. And now they have added one more emotional term, Kartavya Kal. That means it is the duty of each and every individual in India that we all, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम सब मिलके काम करें, हम सब मिलके रिफॉर्म करें, परफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म करें. The government is doing their job. We also at NMA level or any other organization level, we have to do other job. Mr. Mittal and NMA is organizing this program to create, to develop some thoughts so that we also came to know about what is happening in the budget. So this is a Kartavya Kal that it is the duty of each and every individual, including from students to the women who are working, not working, retired. Everyone needs to at least think about that India will grow to a developed country. सभी के लिए ये जरूरी है. And इसमें क्या क्या provisions हैं जो as far as economy से related है, मैं उन्हीं पर touch करूँगा. So मंत्र क्या है? Reform, perform and transform India. इंडिया को change कर देना है हम लोगों को with the help of the government. And government is taking various initiatives for this. And I personally really appreciate that whose mind is going in these words. Some 10 they say Amrit Kal, Kartavya Kal, and various other terms which I will be mentioning. I have mentioned in the various slides. So focus on comprehensive GDP to have a Viksit Bharat at 2047. We all I also want to see कि 2047 में भारत कैसा होगा. हम सब लोग देखेंगे. And now they have defined GDP as G as for governance, D for development, performance. So focus on comprehensive GDP, governance, development, performance. These are points as far as economy is concerned. So governance means managing better with correct intentions. The government says that we will manage better and our intentions are correct because we are moving towards a developed India at 2047. We want to change the India. Then development. People living better, earning better, higher aspirations for the future. We need to develop ourselves. In the last 10 years, people like standard of living has improved. As per poverty line, as per one data I have shared in the next slide also, 25 crores Indians, poor people, they have come out of the multi-dimensional poverty in the last 8 to 10 years. 25 करोड़ आदमी पुअर पीपल इंडिया का बाहर आया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से.
बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। तो चाइना ने एक बार किया था पहले, चाइना यू नो they moved very well, they progressed very well, and they have been able to progress and take their poor people out of their poverty. तो इंडिया भी उस 10 साल में ये कर पाया है। पहले हम कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, and now it is actually happening। गरीबी धीरे धीरे निकल रही है इंडिया से। आज तो अभी बहुत कुछ करना है, वो हम सभी मिलकर करेंगे तभी हो पाएगा फ्रेंड्स। When I travel, used to travel, मैं कभी बिहार ट्रैवल करता हूँ, बिहार में बोध गया, राजगीर, ये सब एरिया है मेरे इंटरेस्ट के। राजगीर में बोध गया में महावीर बीइंग ए जैन, महावीर स्वामी एंड आवर जो 24 तीर्थंकर्स, दे यूज्ड टू उन्होंने तपस्या जो है बिहार और झारखंड में की थी। एंड बुद्धा आल्सो डिड हिज साधना इन बिहार। तो कई बार मैं उस तरफ जाता हूँ तो गरीबी बहुत है बिहार में, गरीबी बहुत है। लेट्स सी, लगता है मुझे जो 4 साल में इंडिया काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। और बिहार में वैसे भी आप लोगों को पता ही है, पिछले 10 सालों में काफ़ी, पिछले 15 सालों में काफ़ी चेंज आया है। सो परफॉर्मेंस, वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन परफॉर्मेंस। जो हमारी ग्रोथ है वो 6.5% to 7%। गवर्नमेंट अभी तक इन द लास्ट 8 years और फ्यूचर में भी, इवन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज सेड India will continue to grow at the rate of 6.5% to 7%, though the world is growing for the last few years since COVID around 2.8%. The world की जो growth है वो 2.8% है in the last year also, और future projected भी 2.8% ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया इस ग्रो कर रहा है, but world is facing various challenges. Their growth rate is low. US, Europe and all other countries. Few Asian countries are doing good, like India, and Vietnam is doing very good. So this is governance, development, performance. ये गवर्नमेंट ने एक न्यू मंत्रा दिया है, GDP, एंड इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं मैं टच करूँगा। फिस्कल डेफिसिट, फ्रेंड्स, वी ऑल नो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। जो गवर्नमेंट खर्चा करती है और गवर्नमेंट इनकम होती है गवर्नमेंट की, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। तो नॉर्मली ज़्यादातर कंट्रीज में डेफिसिट ही चलता है। आज की डेट में यूएस में ज़बरदस्त डेफिसिट चल रहा है। तो जो इंडिया का डेफिसिट है वो 23-24 में इट वाज, द टारगेट था 5.9% था। तो हम लोगों ने कहीं इसको मेंटेन कर पाए हैं 5.8%। तो गवर्नमेंट फाइनेंस, वी अप्रिशिएट द फाइनेंस मिनिस्टर दैट they have committed to a fiscal consolidated, they are moving towards a fiscal consolidation path, and next year का टारगेट है 5.1%। जो अपना, इससे क्या मतलब है कि गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी एक्सपेंडिचर कम हो और इनकम ज़्यादा हो। तो गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है? ये अभी टैक्सेशन से, डिसइन्वेस्टमेंट से। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट भी गवर्नमेंट ने इस बार ज़्यादा रखे हैं, 51,000 करोड़ से डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट रेज करना चाहती है। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स selling shares of the public sector undertakings. And 25-26 में गवर्नमेंट का टारगेट है 4.5%। तो वी अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट अपना डेफिसिट को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है। नहीं तो अदरवाइज कहीं क्या होता है, आप देखें कुछ कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, एंड उनकी इकोनॉमी, दे फेस वेरियस प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। छोटी countries हैं, Pakistan, Sri Lanka, they are all facing various problems because of their debt problem. China is facing huge problem, huge debt problem. और चाइना की वजह से कुछ और कंट्रीज भी huge debt में है। चाइना ने जिन कंट्रीज को लोन दिया था, one of the good example is Sri Lanka. And then our nominal GDP is projected to grow 10.5% year on year. गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हर साल हमारी GDP 10% बढ़ती रहेगी। जैसे आज की डेट में लास्ट ईयर our economy was we were the best, our economy in the top 7 economies in the world. At present it is in the fifth, our economy is among the fifth largest economies in the world, and by 2030 we will be the 3 most powerful economy in the world: India, US and China। 2030 में ये फिगर रह जाएंगी, इंडिया, यूएस एंड चाइना। है राइट सर? तो this will happen by growing। We have already surpassed Germany, जो इकोनॉमी है उसको हमने सरपास करके लिया। I think we are now 4th economy।
नहीं अभी 5 है, वी आर द 5, जर्मनी इंक्लूडेड है। हमने अभी यूके को सरपास किया है सर, यूके को सरपास किया है, यूके को हमने पीछे छोड़ा है अभी। तो 10% के हिसाब से हम लोग बढ़ रहे हैं हमारी जीडीपी। हमारा टारगेट अभी मेरे ख्याल से कि हमारी जो जीडीपी है वो इट इज़ अराउंड $4 ट्रिलियन है, $4 ट्रिलियन, एंड वी आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10%। तो इट इज़ गुड टारगेट। अभी न्यूज़ में किसी ने बोला था कि आप लोगों ने टारगेट्स बहुत अच्छे रखे हैं। तो वन ऑफ द मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल सेड जब टारगेट अच्छे होंगे तभी तो हम अचीव करेंगे। तो सही भी है, हम लोग अपने पर्सनल टारगेट भी अच्छे रखे, अभी उसको अचीव कर पाते। 10% कोविड के बाद था, बेस इफेक्ट की वजह से। जी अभी ये 7.67 ऐसे हो रहा है। अच्छा। और वो भी इतनी बड़ी इकोनॉमी में और जगह 2-3% चल रहा है। तो मतलब सॉरी कुछ मतलब तो ये 1 साल या 2 साल आया था बेस इफेक्ट में इतनी गिरने की कोविड में उस समय 10%। अभी तो मेरे ख्याल से एज पर एक्सपर्ट 8 से कम चल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा है। जी मैं यू आर राइट। सो या आई मीन ये नॉमिनल जीडीपी है, ये थोड़ा कंसर्न डिफरेंट है, दैट वे यू आर राइट। वो मैंने भी इधर लिखा हुआ है 6.5 to 7% ग्रोथ है। सो द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट एवरी बजट दे गिव सम न्यू टर्म्स। इन्होंने इस बार टर्म दिया दिशा निर्देश बातें, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है गवर्नमेंट के, कुछ थोड़ा टच वी विल डिस्कस। सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दे रही है कि सोशल जस्टिस को हर एक किसी को इक्वल राइट्स मिले। एवरीवन डिजर्व्स इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इंक्लूसिव ग्रोथ पे गवर्नमेंट का एम्फेसिस है। इनफैक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ होती है तभी सस्टेनेबल इकोनॉमी होती है। अगर जो इंडिया में वर्ल्ड ओवर ये डिस्पैरिटी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है कि मेरे ख्याल से जो टॉप 5% हैं इंडिया में, उनके पास दे मस्ट बी हैविंग मोर देन 60% ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री, जो कि ज़्यादा ही होगा। अभी गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि हम टूरिस्ट में इन्वॉल्व करें। एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल पॉलिटिकल, सोशल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। वी नीड टू इंक्लूड द पुअर। इंक्लूसिव ग्रोथ ही सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, एंड गवर्नमेंट का एम्फेसिस, I will explain this more in the next slide. Inclusive growth. 25 crore people, जैसे मैंने पहले बताया, came out of multi-dimensional poverty during last 10 years. Multi-dimensional poverty का मतलब है कि poverty from different angles, कि पढ़ाई लिखाई, उसका खाना पीना, रहना, सभी पॉइंट से गवर्नमेंट ने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है पिछले 8 सालों में। This is one point social justice, that हर एक किसी के लिए इक्वल राइट्स हो, हर एक किसी का ध्यान रखा जाए, एंड इफेक्टिव एंड नेसेसरी गवर्नेंस मॉडल ऑफ कोर्स। 4 मेजर कास्ट ग्रुप्स, इसी का जो दिशा निर्देश बातें हैं, इसका दूसरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने 4 लोगों को ज़्यादा कैटेगरी लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है गवर्नमेंट को। पुअर, इंक्लूसिव ग्रोथ, वुमेन को मोदी साहब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, एंड आई अप्रिशिएट। तो लास्ट 3 महीने में हमने सुना, पहले हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया। ऑल द congratulations to all the women of India. And then we have a Republic Day ceremony, women-led Republic Day, first time in India, and it was a very good parade. मेरे ख्याल से जितने भी women हैं उन लोगों को अच्छा लगा होगा कि it was a women-led Republic Day parade. क्यों मैडम? अच्छा लगा आपको? हमारे एरिया में this time we heard this flag by the woman. Yes. मैंने देखा था। Yes. So government is doing good. I mean जो gender parity है, ये one of the SDG है, Sustainable Development Goals. गवर्नमेंट का टारगेट है कि भाई 2030 तक जेंडर पैरिटी इतनी इम्प्रूव हो जाए, एंड बाय 2047 इट शुड बी इक्वल। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ साथ सोसाइटी का माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए, वुमेन को भी आगे आना चाहिए। अभी पार्लियामेंट के बाहर जब ये बजट रखा गया तो किसी जर्नलिस्ट ने एक सीनियर बहुत ही एजेड पर्सन को पकड़ लिया कि ये वुमेन के बारे में गवर्नमेंट बात कर रही है, कभी राइट दे रही है, कभी कुछ दे रही है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ही सेड फाइनली कि
इट वाज वेरी फनी कि हाँ अच्छा है उनको राइट्स दे रहे हैं, अच्छी बात है, उनको ऊपर ला रहे हैं, पर ये ध्यान रखना है कि इससे लड़ाई झगड़े ना बढ़े, वो कंट्रोल में रहे। तो ये नहीं बोलना चाहिए था उसको। कई बार जो है हम ऐसा बोल देते हैं क्योंकि हमारे थॉट्स पुराने होते हैं, एंड ही इज 70+, 70 साल से भी ऊपर है, कोई ज़्यादा ही होंगे, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। Then government is giving emphasis to the youth. गवर्नमेंट ने पिछले सालों में द स्किल इंडिया मिशन में it trained 1.4 करोड़ यूथ्स, 7 IITs खोले हैं, 16 ट्रिपल IIT खोले, 7 IIMs 15 IIMs लिखा शायद कुछ गलती है, and 390 यूनिवर्सिटीज सेटअप in the last 10 years। तो गवर्नमेंट का यूथ को डेवलप करने का बहुत अच्छा एक मोटो है, बिकॉज जब यूथ को आगे लाएंगे तभी इंडिया प्रोग्रेस करेगा। इनफैक्ट इंडिया का जो यूथ रेशियो है वो वर्ल्ड रेशियो से बहुत आगे है। हमारा जो डेमोग्राफी है उसमें हमारे यूथ जो काम करने वाला हमारा जो सोसाइटी है, लोग हैं, मतलब यूथ है, they are in good proportion as compared to other countries for whatever reason। उनके यहाँ बर्थ कंट्रोल ज़्यादा हो गया है, चाइना जापान सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को कि they are controlling more, I mean बर्थ पॉपुलेशन को ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। they are giving various incentives that if you are producing more children we will give you this incentive and all। so इंडिया का इसलिए भी ग्रो करने का ज़्यादा चांसेस हैं, all the world is watching India because हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारा जो यूथ है, we have more youth in our structure who can do more work। and then गवर्नमेंट मिडिल क्लास के लिए भी गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है, जैसे रूफटॉप सोलराइजेशन फ्री फॉर 1 करोड़ पीपल। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 1 करोड़ लोगों के यहाँ हम रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाएंगे फ्री, एंड देन दे कैन आल्सो अर्न 16,000 पर एनम। सो बहुत अच्छा टारगेट है अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए। 1 करोड़ लोगों के यहाँ This will come from the reverse generation होगा। यस, इनकम होगी, इनकम ऐसी उनकी इनकम भी होगी जो अपना जो एनर्जी जनरेट होगी सोलर पैनल से, दे कैन सेल इट टू द गवर्नमेंट। दे कैन सेल इट टू द गवर्नमेंट। यस एंड फ्री में लगाया जाएगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगी आपकी। यू विल नॉट कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोयल, बिकॉज़ गवर्नमेंट का टारगेट है क्लाइमेट क्राइसिस इज a huge challenge for the India and the world। Government has to shift from the coal based energy to the renewable based energy to be produced with the help of solar panels and wind energy। and income tax reduction, गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को ये अच्छा रियायत दे दी है। मित्र साहब ने बोला था कि छोटे मोटे 10-20 हज़ार के जो क्लेम्स हैं इंटरनेशनल छोड़ देंगे। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पुश दे रही है, बिकॉज जब गवर्नमेंट इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है तो इकोनॉमी बूम करती है। तो गवर्नमेंट ने इसको 17% इंक्रीज किया है इस बार, तो इट विल बी, इसका जो है 11.1 ट्रिलियन। 11.1 ट्रिलियन। एनी आइडिया सर 1 ट्रिलियन कितने का होता है? 1 ट्रिलियन की क्या फिगर है? एनी आइडिया? 12 शून्य से 1 के आगे, तो इट कम्स टू 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़। तो गवर्नमेंट का टारगेट है इस साल खर्चा करेगी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इट इंक्लूड्स रेलवेज, एयरपोर्ट्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड ऑल। 11.1 ट्रिलियन। सो व्हेन हम खर्चा करते हैं तो इकोनॉमी बूम करती है, बिकॉज इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेबर, among the various industries। You consume more steel, more cement, more products, that economic growth reduces। dollar terms it is 1,000 billion. Pardon? In dollar terms it is $1,000 billion। 1 ट्रिलियन नहीं, डॉलर की तो हम बात नहीं कर रहे, मैंने फिगर नहीं किया। ट्रिलियन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 8,000 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट। और 10 ट्रिलियन 80,000, 100 ट्रिलियन 8 लाख, और 1 ट्रिलियन आप डॉलर बोल रहे हैं? मतलब उसको नहीं, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा। 11.1 ट्रिलियन INR की मैंने बात करी है। anyhow, तो this is good from the point of the government। Government is taking each and every step that this economy should grow at any cost or whatever। Government का मतलब we should appreciate it।
यूजिंग टेक्नोलॉजी एज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट का टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ब्रिंगिंग वैल्यू टू द इकोनॉमी एंड फैसिलिटेटिंग IP सेक्टर। DPI क्या है? तो UPI पेमेंट एंड ऑल, डिजी लॉकर, क्लाउड, ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आजकल डिजी लॉकर में क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब स्कैन करो, सब के सब अपना एक डिजी लॉकर बन गया, वहाँ से कुछ भी रिट्रीव कर सकते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। आजकल हमारे आपको पता भी नहीं होगा मित्तल साहब की, हम सबकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्म में है। तो सिविल का स्कोर हमारा बना हुआ होगा, हमने तो कहा नहीं इसको बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा सिविल स्कोर बना हुआ है। हाँ, हम कहीं पे लोन लेना हो तो बैंक वाले हमारा इंटरेस्ट निकाल लेंगे पूरा पूरा खाता, कितनी पर जाने कितनी बार लोन लिया है, कितनी बार डिफॉल्ट किया है, कितनी बार पेमेंट पूरी कर दी। R&D पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ध्यान है और होना भी चाहिए। Research and development is must be given importance in each and every company and for the government. And government ने corpus क्या रखा है इसका 1 trillion INR, 1 lakh crore corpus to boost innovation and research in sunrise sectors. And government क्या youth को, जो tax savvy youth है, government उनको loan देगी, उसका 50 years interest free loan to tax savvy youth. This is a very good opportunity for the youth, those who want to do something in the technology sector, and it will be a game changer, my dear friends. Government इसको implement करेगी and it will boost sustainable economic growth. अगर youth लोन लेके इसको बनाता है, कुछ भी टैक्स में, टेक्नोलॉजी में youth कुछ भी करता है, and government उसको boost करेगी, उसको incentive देगी. So this R&D में government का बजट है 1 trillion corpus to boost innovation in research, and this is all the startup sectors, more youth will come. अभी आज की डेट में पिछले 5 सालों में 1 lakh startups बने, 1 lakh startups, it is a huge number. Government wants to push it more. टूरिज्म को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री के मन में नए आइडिया आते हैं, वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप गए, उसके बाद जब गूगल वालों ने फिगर निकाली कि इनके लक्षद्वीप जाने के बाद 1 लाख लोगों ने, 1 लाख लोगों ने लक्षद्वीप को सर्च किया कि हम क्या देखते हैं लक्षद्वीप में क्या है। सो गवर्नमेंट लक्षद्वीप को गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेवलप लक्षद्वीप लाइक एनीथिंग, एंड जो अदर कंट्रीज हैं लाइक मॉरिशस एंड ऑल, उनको लगा कि यार जो इंडियंस मॉरिशस आते हैं दे मे गेट डाइवर्टेड टू लक्षद्वीप। और किसी मॉरिशस के मिनिस्टर ने कमेंट भी डाल दिया इसके ऊपर, और मॉरिशस के जो सेंट्रल लीडरशिप है उस मिनिस्टर को बर्खास्त भी कर दिया। क्या इंडिया के अगेंस्ट ये बात कहने की क्या जरूरत थी? इंडिया ने लक्षद्वीप को रिपोर्ट किया, उसने ये बात बोल दी ओपनली, एंड ही वाज सेक्ड। सो गवर्नमेंट का बड़ा ड्राइव है, एंड गवर्नमेंट विल एनकरेज द स्टेट्स, वेरियस स्टेट्स टू डेवलप आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स। गवर्नमेंट विल गिव ग्रांट्स टू द स्टेट्स कि अपने अपनी स्टेट्स में टूरिज्म को डेवलप किया जाए। एंड अयोध्या फॉर एग्जाम्पल, अयोध्या पे पॉलिटिकली बड़ा हंगामा हुआ, बट रिलीजियसली बहुत सब लोगों ने एंजॉय भी किया उसको। पर मैं एक चीज़ देख रहा था कि अयोध्या से जो है इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, अभी तो साहब बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। 50 million टूरिस्ट विल विजिट अयोध्या एनुअली एज पर माय एस्टिमेट। 50 मिलियन से हो गया 5 करोड़। 5 करोड़ लोग हर साल अयोध्या विजिट करेंगे आफ्टर दिस राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के बाद। तो अयोध्या विल ग्रो लाइक एनीथिंग। अभी मैं पढ़ रहा था कि अयोध्या में वेरियस बैंक्स दे आर गोइंग देयर कि अपना सब कुछ अपना सेटअप करें, रेस्टोरेंट्स, ये जितने भी फास्ट फूड्स रेस्टोरेंट्स थे, दे आर जस्ट गेटिंग। हम सब लोगों को अयोध्या एक बार देखना चाहिए। वैसे अयोध्या में आज की तारीख में अयोध्या एकदम से चमक गया है। प्रधानमंत्री ने कई स्टेट्स को, सिटीज को चमका दिया। वाराणसी, पहले उन्होंने वाराणसी को खूब ध्यान दिया, वाराणसी एकदम से डेवलप हो गया है। एंड अब अयोध्या की तरफ काफ़ी लोगों का ध्यान जाएगा, क्योंकि करीब बहुत सारे राम भक्त हैं। हमारे मन में आता ही है यार, चलते हैं यार अपना थोड़ा सा वहाँ पे जाके मेडिटेशन करेंगे, बैठेंगे भगवान के याद। तो दिस इज गुड, वो पे अयोध्या जाना चाहिए। देखो साहब एनिमल की तरफ से क्यों नहीं है? अयोध्या का जो उसका नहीं है, लक्षद्वीप है, अयोध्या है, ये बेसिकली क्या हो रहा है इसके कारण से, इस तरह की इवेंट के कारण से वो अयोध्या इट हैपेंस टू बी अयोध्या। मैं तो ये बात करता हूँ, इस तरह के इवेंट्स के होने से या इस तरह के प्रोग्राम होने से वर्ल्ड ओवर लोगों की निगाह इंडिया के ऊपर जा रही है। लोगों को इंडिया में इंटरेस्ट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है यार, ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब समथिंग स्पेशल इज हैपनिंग। तो
चलना चाहिए, इंडिया में जाना चाहिए। तो टूरिज्म जो ये लक्षद्वीप की बात कह रहे थे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कैलकुलेटेड एक्सरसाइज थी उनकी कि एक डिस्कार्डेड सा लक्षद्वीप पड़ा हुआ है, यहाँ एक डुबकी लगाई जाता है दुनिया में उन्होंने सोचा भाई क्यों सलमान खान या शाहरुख खान को नचवाना वहाँ पर, वही जाके डुबकी लगा देता है। You're right. इनका कैलकुलेट मोदी साहब का calculated exercise to uplift that area. yes very right. I agree to you. ये इनका कैलकुलेटेड था, मैं वहाँ जाऊँगा लोगा लक्षद्वीप मुझे This was scripted, पूरा scripted था, ऐसा होगा मैं वहाँ डुबकी लगाऊंगा ये लोग। अरे आप खुद ही सोचिए, वो एक्टर की तरह से पूरे डुबकी लगा रहे हैं, कैमरा वाला वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो this was scripted. Yes. पता था हमको ऐसा करना है। Yes. uplift करने पर ये बात जरूर है, इसमें जरूर गवर्नमेंट की किसी की भी तारीफ करनी चाहिए, जो स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ पर, उन लोगों को तारीफ करनी चाहिए। बाकी कि वो लोग किस डायरेक्शन में सोच कर कैसी प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल एंटायरली जो अनइमेजिनरी है कि ऐसी करके प्लानिंग करो है, किसी एरिया को अपलिफ्ट करना था ऐसा करो। यस गवर्नमेंट का अच्छा थॉट चल रहा है, कैसे इंडिया को ग्रो करना है, एक पॉइंट उनका एक स्टाइल उनका एक बात करना, मतलब कुछ ये मानता हूँ ये मोदी गवर्नमेंट है, कोई भी है, मतलब बेसिकली ये जो भी स्टेप्स होते हैं ना कहीं कैलकुलेटेड होते हैं, मतलब ये कुछ नहीं है कि भाई ये इन्होंने अचानक कर लिया। यस इस गवर्नमेंट के तो कैलकुलेटेड स्टेप्स ही है। स्टेप्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी लक्षद्वीप जाएं, अयोध्या जाएं, पराग साहब मैडम लोग अयोध्या दिखाइए क्यों? दिस विल डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो वहाँ जाके एक स्पिरिचुअल वो क्या कहते हैं फीलिंग आएगी, जरूर मन में आएगी। एंड वी शुड सी आल्सो कि कितना डेवलप हुआ है, कितना क्या बना है। यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे वो पूरा अयोध्या का आ ही रहा है कि ऐसे घटना हो जाएगी, उसमें पूरा आया इसमें एक अपना व्हाट्सएप मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप भेजा, उसमें पूरी मतलब एकदम से हाउ यू एंटर, फिर वहाँ पे बेल आएगी तो उसने व्हाट्सएप पे ये दिया हुआ है कि अपने आप बेल बजाइए, वो बजता भी है आपको ज़्यादा पता होगा। सो गवर्नमेंट का नेक्स्ट टारगेट है इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के पैसा कहाँ से आएगा। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे PSUs हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, काफ़ी सारे बैंक्स हैं अभी गवर्नमेंट के टारगेट्स, 50,000 करोड़ का टारगेट है, थोड़ी ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से। एंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट टू फाइनेंस कैट्स। तो पहले तो बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आज तो इतने प्रोटेस्ट नहीं होते हैं जब हम प्राइवेटाइजेशन करते थे। अब तो उनको समझ में आ गया है कि दिस इज रूटीन, कोई इसको स्टॉप नहीं कर सकता, दिस इज इनइविटेबल। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हुआ है, एयर इंडिया हुआ, काफ़ी सारे बैंक्स हुए, अभी बहुत सारे बैंक्स पाइपलाइन में हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब बैंक्स के शेयर पहले एक साथ पहले 10-20 रुपये होते थे, आजकल 60-60 रुपये शेयर हो गए कि इसी चक्कर में कि गवर्नमेंट इस इन्वेस्ट करेगी। क्वालिटी हेल्थ केयर, गवर्नमेंट का हेल्थ केयर पर पूरा ध्यान है, आयुष्मान भारत एंड ऑल द स्कीम्स पूरा ध्यान है, बिकॉज किसी भी कंट्री की इकोनॉमी तभी ग्रो करती है जब हेल्थ केयर, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तीन चीज़ें बहुत जरूरी होती है। एजुकेशन, you need to have educated class, then healthcare, and healthcare you need to have good health system, and then infrastructure. Government का health care पर पूरा ध्यान है, quality health care, government various schemes they have initiated, and this is the last in a nutshell. तो गवर्नमेंट का जो बजट है it is strong on fiscal discipline. गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करने की कोशिश करेगी and income बढ़ाने की कोशिश करेगी, which is very important for any country, for any। हमने काफ़ी सारी कंपनीज को, बड़ी कंपनीज को आप देखेंगे, अदानी हो चाहे कोई भी, हर एक किसी के डेट बहुत ज़्यादा रहते हैं, सबके सब एक्सपेंशन करते हैं, टैक्स बढ़ाओ कि टैक्स आ गया पैसा। आज तो गवर्नमेंट ने IBC को इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट की जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंटेंशन है कि पैसा एक बार लोन ले लिया, पैसा हमारे पास ही रहेगा। गवर्नमेंट भी आजकल बड़ी स्ट्रिक्ट है, IBC के थ्रू गवर्नमेंट प्रोमोटर्स को कंट्रोल किया हुआ है, तो ज़्यादा लोग हर एक किसी का रहता है कि पर डेट ले लो पैसा आ जाए। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वी विल बी स्ट्रॉन्ग ऑन फिस्कल डिसिप्लिन, डिवॉइड ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर्स। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस बार फ्रीबीज, पॉपुलिस्ट मेजर्स थ्रो नहीं किए हैं। गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है, ऐसा लगता है कि इलेक्शन अभी जीतेंगे। तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इंसेंटिव दिया नहीं है कि हमने ये दे दिया इंसेंटिव, सब साइलेंट, लेस फ्रीबीज एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर ग्रोथ। गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाली है ग्रोथ के लिए,
गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट भी है, एक तो रेगुलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब आज की डेट में ये है कि आपने गलती करी और डंडा पड़ा सर के ऊपर। यू कैन बी ए बिग कंपनी एज बिग एज पेटीएम, जो पेटीएम का नाम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है, इसी की वजह से पेटीएम ये सब ट्रांजेक्शन होती थी। बट इफ दे आर नॉट कंप्लाइंग, गवर्नमेंट ने डाल डंडा मार ही दिया। 5 साल पहले हम ये चीज़ नहीं सोच सकते थे, आज ही ऐसा हो सकता है। आज की डेट में इंडिया का बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड के कुछ बैंकिंग सिस्टम से बेस्ट है बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नर। नहीं तो ऐसे पेटीएम को एकदम से डंडा मारना पॉसिबल नहीं था। It has become possible only in this government. I mean, I appreciate it, although few people are criticizing it. So, my dear friends, this is a good budget. I appreciate it, and there is nothing to complain about it unless you are in opposition or you are not feeling good about life. If someone is not feeling good about life, ना तो उसको लगता है हमें लोग क्या फर्क पड़ता है, यार दुनिया तो बेकार है, ये मोदी साहब कुछ भी करते रहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। So friends, I really appreciate. So let us we कर्तव्य बात पे चले, सबको कंट्रीब्यूट करें towards a developed economy at 2047. Thank you, my dear friends. थैंक यू दीपक जी। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से और बड़ा सिंपल तरीके से आपने इंगेज करके हम लोगों को जो सारी बातें, मैं एक तरह के पॉइंट बोलूँगा यहाँ पर जो बहुत स्ट्रांगली लगता है मुझे बोलना चाहिए। ये जो फिस्कल डेफिसिट का जो बात कर रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स को गवर्नमेंट लोअर किया है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो मैं कहीं पढ़ रहा था, मेरे को भी लगता है कि वो ठीक बात है, वो ये पड़ता है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कम हो जाती है बैंक से उसमें, क्योंकि अगर उसको उसका डेफिसिट कम है तो निश्चित रूप से अगर शॉर्टेज कम है तो पैसा कम ही रहेंगे ना बैंक से, तो बैंक के पास में डिस्पोजेबल फंड्स बहुत मतलब बच जाते हैं। तो ये आइडिया है कि अगर वो डिस्पोजेबल फंड्स बच जाते हैं बैंक के पास में, बैंक के पास पैसा होगा तो बैंक जो पैसा है वो जनरल पब्लिक को पैसा देगा, इंटरेस्ट रेट का लोअर होने की संभावनाएं रहती हैं उस केस के अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स अगर बैंक के पास है तो वो जनरल पब्लिक के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल हो सकती है। सो दिस वाज ए वेरी इम्पैक्टफुल डिसीजन जो इस तरह से करके मतलब हेल्थ तो गवर्नमेंट की बनती है, साथ में ये जनरल पब्लिक को भी फायदा होता है इफ द डेफिसिट इज रिड्यूसिंग। तो ये आई होप सो कि इस तरह से करके ये इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा एक स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है आने वाले टाइम के लिए। तो मैं अनुजा सहगल जी को एक बार आपसे मतलब वो कुछ बहुत स्ट्रांगली कुछ उनका अपना एक्सपीरियंस है, उन्होंने कोई इवेंट वगैरह भी अटेंड किया था, तो 5 मिनट लगाकर वो आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो दिस विल बी वेरी यूजफुल। ये उन्होंने सबको वो दिया है, तो शी विल जस्ट लेट एवरीबॉडी नोज कि व्हाट इज दिस वुमेन वर्क प्लेस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और ऑल दिस। तो लेट अस लिसन टू हर एंड थोड़ा सा हमको कुछ नई जानकारी हासिल होगी। तो मैं वेलकम करता हूँ। थोड़ा शॉर्ट में ही आप because you are already over time. So I had recently attended a session which was organized by the Ministry of Labour and Ministry of Women and Child Development, where Ms. Smriti Irani was invited, and this was on Nari Shakti, and it was based on Viksit Bharat for 2047, towards 2047. So basically, this is an advisory which is given by the Government of India, and it talks about advisory for employers to promote women workforce participation all over India. And they shared that earlier, till last year, it was 28% participation, 23%, and now it's risen to 37%. So there is an increment in the workforce participation, and there was a pledge that was taken. I would like to share the pledge that all industries need to take. The industry pledge on increasing women participation is: as employer, I pledge to increase women's participation in the workforce and to provide childcare facilities like creches. Basically, it means that all women can now come out of their homes and work, and there will be creches
which will be built near their workplaces, and they will be set up under the Anganwadi scheme, where every crèche will accommodate at least 25 children from 6 months to 6 years. And women need not worry about their children, they will be well taken care of. And nutrition will be given to them under Nutrition Point 5, which is documented. It is a procedure that they will follow. And 12th pass ladies will be groomed to take care of those creches. Then ensure equal pay for equal work among women and men. Enable women to balance work and care responsibilities. Grant maternity leave and other such benefits as per law. You all know that the maternity leave has been raised to 26 weeks now from the previous 12 weeks. Constitute an internal compliance committee on sexual harassment mandated by law. Provide safe workplaces for women. Communicate all such provisions clearly to all employees. Invest in career planning and training required for growth of women employees. Have gender agnostic job descriptions. Promote women participation in supply chains and focus on increasing women participation in workforce by a defined percentage in next 3 years. So objective is to raise women participation and remove all obstacles that come in the way of their participation. That is, encourage education in STEM, science, technology, all those aspects, and other information, relevant information related to safety, healthcare, all laws, industrial relations are mentioned in this booklet. So you can go through this advisory and get more information on this. Now coming on to the this event was held at Bharat Mandapam in Pragati Maidan. It's a venue where G20 happened, and more than 400 industry professionals had attended that session. And I'm glad that I represented NMA and got this information. So I would like to spread awareness of this advisory to all. Request you all to also share this advisory among your contacts. So more and more information can be spread. And a copy of the pledge has been shared in the group, a WhatsApp group. You can share that pledge also to the rest of the world, whoever is in your contact. Coming on to the vote of thanks for this interim budget discussion. I think it was a okay. So before the vote of thanks, I would like to felicitate our speakers for the day. It was a wonderful, wonderful session. I think one of the finest sessions on union budget that I have attended in Noida Management Association, and all the participant speakers were wonderful with their insights. So can I welcome Mrs. Sandhya Kumar to felicitate Mr. Sandeep Mittal. Otherwise, this is a program organized by DCP only. So, अपने आप को Thank you very much. Ma'am, Thank you please, very much. facing Sir. the side, please. Thank you. Can I now invite Mr. Khan to please facilitate Mr. Deepak Jain? Thank you. एक मिनट सर. I would like to invite Mr. Mukesh to please facilitate Mr. Pratyut Parashar. Thank you so much. Shall I now proceed for the vote of thanks? Yes, we may be few in numbers,
बट वी आर इम्पैक्टफुल, ये इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वॉट एवर वी आर डूइंग हियर, वी आर रिकॉर्डिंग इट। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, नोएडा मैनेजमेंट इंडस्ट्री को, उसके ऊपर ये अपलोड होता है। तो हमारी जो बातें हैं या हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है, डेफिनेटली मतलब इट इज गोइंग टू ए वाइडर स्पेस, लोगों में स्प्रेड होगा। जो भी यूट्यूब चैनल पर आएगा देखेगा तो उसको पता लगेगा कि हम लोगों ने क्या किया है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लोग तो मतलब कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं होता तब भी वो रिकॉर्ड करते हैं। आजकल तो कुछ ऐसा भी हो गया है, तो क्योंकि रिकॉर्ड करके वो कम से कम इट गोज टू द वाइडर ऑडियंस ना। Yes, yes, yes. ये चीज़ है, तो नेवर माइंड। तो यस Yeah, so in the vote of thanks, I would like to thank all the speakers who came here took their time, precious time, devoted their precious time to this session. Interim budget, as you know, is a inclusive approach, a development philosophy which focuses on innovation for development and covers all social geographical areas which are mandated by the government, which lay the foundation for Viksit Bharat 2047. More than 11% has been going to be spent on infrastructure, spiritual tourism, housing, minimum support processes, basic needs all around, and it will be a pervasive and inclusive budget for all. As Mr. Deepak Jain highlighted, it will be based on social justice governance model to reform, perform and transform India. It is related to focusing on a comprehensive GDP, which is governance, development and performance. And lot of areas have been focused for development to strengthen our economy. Main focus being on spiritual tourism and digital, and setting up a digital public infrastructure. I thank Mr. Pratyush Parashar for informing us about the GST aspect under the indirect taxation and highlighting that there is no change in GST as such, as it falls operational under the GST Council. However, amendments are expected because there are amendments are expected when the new government is formed, as there are still inconsistencies in the GST law, and which makes it difficult for people to operate it as per the drafted information. So that is one of the obstacles that people are facing, and hopefully with the new government we will see a good change. He threw many concerns related to workers' contract issues, also on notices, place of business, place of supply, export of services, etc. I thank you for giving us interesting insights on the same. Focusing on what Mr. Sandeep Mittal highlighted on related to direct taxation, he talked about hoping for increased engagement in IT filing, as the government focuses on improving the IT filing, raising public funding, interest in government, raising public confidence. He spoke about various sections which are very important and which were new to our understanding, like the section 80IC, which talks about new startups and making the first year income tax-free, at least up to 2025. Exemptions under section 10, foreign-related income, section 92C, which talks about transfer pricing. Continuity of, he maintained that this interim budget focuses on continuity of certain sections till 2025, and this is an interim budget. So whatever changes that have been proposed are only valid up to
till the final budget comes, that is in July. And however, most of the sections continuity has to be maintained in 2025. And we also talked about section 154C, which is about dispute redressal for SSEs, which is again a very important act and needs to be taken forward till 2025, because there are some issues that needs to be addressed in continuity. He also mentioned about section 200C, which focuses on some changes related to foreign remittances, which is again very interesting, and a lot of people did not know about this. And giving whatever little insight that he has given about this itself, opens door for us to explore more related to this and develops our understanding on what is going on in the world related to taxation for people who are going abroad. So thank you so much, Mr. Mittal, for the focus on direct taxes, and I am thankful to the audience to have taken out their good time here and attended this Union Budget of 2024 discussion. Thank you so much.